आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा। मैम। सो जी, फाइब्रॉइड यूट्रस की आज हमारा टॉपिक है बेसिकली। तो जी फरहत, कोई केस है आपके पास? पहले किसी ने कोई क्वेश्चन करना है या कोई एग्जाम का एक्सपीरियंस या कुछ है इस टॉपिक से रिलेटेड तो जरूर कर लेते हैं, फिर वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। जी। अ, हम्म। मैम केस आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। ठीक है। सो देखो, फाइब्रॉइड जो है ना बेसिकली बहुत सारे सिनेरियोज में आ सकता है। एक टिपिकल सा हम करेंगे पहले, उसके बाद हम जो है फिर डिफरेंट सिनेरियोज इन पे कवर भी कर लेंगे, मैनेजमेंट हर एक की करके। सो पेशेंट इज 45 years of age and she's here with heavy menstrual bleeding, regular heavy menstrual bleeding, and her hemoglobin is 8 grams per deciliter, and on ultrasound there are multiple fibroids. अच्छा मैम, ये शॉर्ट केस या एज अ स्ट्रक्चर डिस्कशन? Structure discussion. ओके मैम। मैम, माय पेशेंट 25 years old. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल Sorry, आस्क she's अबाउट हर। 45. Bharat, she's 45. फिर से मैं सिनेरियो बोलूंगी। Patient is 45 years of age and यस मैम। she's para 2 with last child born 6 years back, and she is here with heavy menstrual bleeding and her hemoglobin is 8 grams per deciliter. ठीक है, बस अभी इतना ही है। या चलो, on ओके ultrasound there are multiple fibroids present. जी, how ओके will you मैम। manage history examination? यस मैम। जी। After introduction and brief demographic detail, I will address her concern and set agenda. And as my patient with the heavy menstrual bleeding, so I will ask about her bleeding pattern. First of all, the duration of bleeding and the duration, and I will ask about the cycle pattern, and then I will ask about her amount of bleeding, and I will ask about amount of bleeding, and whether she has any intermittent bleeding or not, and then I will ask about the effect of this bleeding on her life, and I will ask about her symptoms like vertigo, palpitation, she has or not, and then I will ask about her last LMP, and after that I will ask about her whether she has any. Um, I will ask about her age of menarche, and then after that I will ask about any mass or any mass or any history of dysmenorrhea, or then after that I will ask about any pressure symptoms, or is whether she has any decrease of appetite, loss of weight, or and I will ask about her any whether she has any coagulopathy or coagulation disorders, and then after her consent I will ask about her coital history like dyspareunia, discharge, and I will also ask about her the pap smear history, and after that I will ask about her ops history, and I will ask about her then Hmm. yes ma'am, how she conceived, mode of delivery, future fertility desire, and whether she has heat or cold intolerance, acne, hirsutism, or virilization. And after that, I will ask about her uh, medical history, any surgical history of concerns, हम्म। like any history of थोड़ी सी PCO. आवाज कट रही है पर। मैम, ठीक एनी है। हिस्ट्री ऑफ पी। हेलो मैम, आ रही आवाज़ आ रही है मैम? हेलो। हम्म। हेलो। सो आवाज कट रही है। ठीक है। अभी आपका दोबारा से मुझे तो आवाज हेलो। नहीं आ रही, पता नहीं बाकी लोग। हेलो। 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 आपकी आ रही है डॉक्टर फरहत, मैडम की साइड पे इशू है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
हाँ मैडम का डिस्कनेक्ट हो गए है। हाँ हाँ, शायद मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। फातिमा, डॉक्टर फातिमा कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं डॉक्टर फरहत? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। डॉक्टर फातिमा, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? हाँ डॉक्टर फरहत, बस कर तो रही हूँ, आपकी दुआओं की जरूरत है। आपकी भी हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा ना, अल्लाह ताला हम जरूर सबको पास कर दे। इंशाल्लाह। आमीन हाँ आमीन जी। सुमा आमीन। अपना दूसरा हॉटस्पॉट ऑन करती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस मैम। अच्छा, ओके। जी सॉरी। हाँ जी, अब सॉरी, मेरे उसकी प्रॉब्लम थी इंटरनेट की। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग, सो फरहत, आपकी आवाज मुझे आना बंद हो गई थी। मैं आपको ये कह रही थी कि आप अच्छा बता रहे थे इन अ वे कि यू वर ट्राइंग टू कवर ऑल द पॉइंट्स, आपके माइंड में डीडी भी थी और वो सारा कुछ भी, बट ये सारा कुछ और ज्यादा ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक होना चाहिए। नंबर वन, बहुत सारी चीजों को ठीक होने की जरूरत है। आपका एग्जाम कब है फरहत? मैम मेरा ये 12 मई को है इंशाल्लाह। 12 मई 12 को? मई ये किस चीज का एग्जाम है? मैम, पार्ट 2 का, FCPS पार्ट 2। अच्छा, 12 मई को ही है। ऑल राइट। जी अच्छा, जी। आई थॉट बिकॉज शुरू में आपने शॉर्ट केस की बात की तो आई थॉट कि आप कोई एमएस के शायद होगे स्टूडेंट। ऑल राइट। नहीं, म- ठीक है। तो मैम। अगर आपका एफसीपीएस यस वाला ही है तो अभी थोड़ा सा मैम। टाइम है। कोई बात नहीं, अभी आपके पास 1-2 महीने हैं फिर भी। सो यू कैन इम्प्रूव। अब इसमें सबसे जी। पहले क्या करना है, बल्कि सबने ही, जैसे मैं हर क्लास में कहती हूँ कि आपके फिंगर टिप्स पे हिस्ट्री होनी चाहिए। जब एक पेशेंट का आपको सिनेरियो दे दिया गया है तो आपको पता हो, देखो हमें तो, हमारी तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में पूरा डायग्नोसिस होता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दिया हुआ है और सिनेरियो के अंदर फाइब्रॉइड यूट्रस भी दिया हुआ है। ठीक है, चीजें काफी आसान हुई हुई है। अच्छा, उसके अलावा एचबीबी कम दी हुई है, तो यानी कि इसके अंदर आपने जो 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसकी आपने हिस्ट्री लेनी है बहुत डिटेल में: हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विच विल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग की डिटेल्स एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। उसके अलावा आपने नंबर 2 पे अनीमिया की डिटेल्ड हिस्ट्री, और नंबर 3 पे आपने फाइब्रोइड यूट्रस का डीडी निकाल कर आपने हिस्ट्री लेनी है। अच्छा, उसके अलावा ये कि यू वर यूजिंग अ लॉट ऑफ मेडिकल टर्म्स इन योर हिस्ट्री, जो कि हमने नहीं लेना होता। हमने हिस्ट्री के अंदर लेमैन लैंग्वेज में बात करनी होती है। आपने यू स्टार्टेड विद डिस्मेनोरिया, डिस्पैरूनिया, मिनार्की और इस तरह की, और उसके अलावा आपने और भी बहुत सारी हर्षिटिज्म और पता नहीं बहुत ज्यादा टर्म्स यूज किए। मैम आपने नॉन मैम हम मेडिकल, आपने पेशेंट के लैंग्वेज में। जी। मैम मैं एक्चुअली इसको एज ए स्ट्रक्चर डिस्कशन प्रेजेंट कर रही हूँ ना। जब हम शॉर्ट केस में पेशेंट से लेते हैं तो उस वक्त तो हम लेमैन लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर डिस्कशन हुए तो तब हम मैम क्योंकि डॉक्टर को बता रहे हैं, तो इसलिए नहीं, देखो मेरे बात ये जहन मैं में। बताती हूँ। चाहे वो जी जी। स्ट्रक्चर डिस्कशन हो, चाहे वो पेशेंट से पूछ रहे हो, शॉर्ट केस तो आप ना बोलो, आपको एक्सटेंडेड टॉक्स तक, वो फिर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। शॉर्ट केस एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है जो एमएस में आता है। तो आप यस मैम। जब आप बेशक आप पेशेंट से बात कर रहे हो या आप पेशेंट की हिस्ट्री लेके एग्जामिनर को प्रेजेंट कर रहे हो या आपस में, हिस्ट्री शुड ऑलवेज बी इन इन द लैंग्वेज ऑफ पेशेंट। हमेशा याद रखें, बेशक आप एग्जामिनर को या डॉक्टर को बता रहे हो। एक्चुअली कई दफा एग्जामिनर्स बड़ा इरिटेट होते हैं फिर यूजिंग अ लॉट ऑफ मेडिकल टर्म्स इन फ्रंट ऑफ देम। यस मैम। डिस्पेप्सिया, डिस्केक्सिया और पता नहीं क्या क्या, लोग वहां पे ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती, वो जेन्युइन है, ठीक भी है, लेकिन वो इतनी रेयर वो होती है कि कई दफा एग्जामिनर भी सोचता है कि इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज समटाइम्स वी आर नॉट वी आर नॉट यूज टू यूजिंग दैट लैंग्वेज अदरवाइज ऑल्सो। सो वेन एवर यू आर आइदर, इसलिए अपनी ये बना लो रूटीन के आपने हिस्ट्री हमेशा लेमैन लैंग्वेज। यस मैम। यस। ठीक है। सो आपने ये जरूर इस चीज का ध्यान रखना है।
तो इस पेशेंट की अगर आप हिस्ट्री इन पर्टिकुलर कहें, अच्छा, देन यू स्टार्टेड विद अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस कि आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, विल पता नहीं डू दिस एंड विल पता नहीं सॉर्ट आउट द एजेंडा, और आई डोंट नो व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट। देयर इज नो नीड टू टॉक लाइक दैट, ठीक है? टाइम नहीं होता वहां पे ना एक्स्ट्रा बातें करनी है। Yes, ma'am. क्योंकि जो सुनने वाला है ना, वो भी तो एक इंसान है, उसका तो दिमाग पहले ही घूम चुका होता है इतने ज्यादा कैंडिडेट्स का सुन के, और फिर ये एक्स्ट्रा बातें सुन के ना और ज्यादा अगले के दिमाग घुमाने वाली बात होती है। तो आपने बहुत टू द पॉइंट बात करके करनी होती है, नंबर वन। अच्छा, उसके अलावा अब इस पेशेंट की हिस्ट्री अगर आप कहो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फिर अगर किसी और ने भी प्रेजेंट करना हो तो वो भी, ताकि आपको थोड़ा और इवेलुएट हो जाएगा। Whenever there is history of heavy menstrual bleeding in gynae, of course, after biodata, you will ask the age is there, parity is there, last childbirth. I think मैंने काफी कुछ तो बायोडेटा में दिया। यस, LMP आप सॉर्ट आउट कर लोगे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट क्या थी। उसके बाद आप जब इसका हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की बात शुरू करोगे, तो यू डेफिनेटली स्टार्ट किस सिंस कब से, देन द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, एंड इज इट रेगुलर और इरेगुलर। द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग के अंदर आपने पूरी डिटेल में बात करनी होती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पैड्स इज चेंजिंग पर डे, if there is any passage of clots or not, if clots है तो what's the size of clot that is passing. So ये सारा कुछ आपने इवेलुएट करना होता है इस चीज को रूल आउट करने के लिए, अमाउंट ऑफ। सो इस चीज को तो आपने करना है सॉर्ट आउट। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किस तरह से, और फिर उसके बाद पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, एंड इफ देयर इज एनी पेन, तो फिर दैट पेन की जो हिस्ट्री है, इट हैज टू बी वेरी मच डिटेल्ड, बिकॉज इफ देयर इज फाइब्रोइड गिवन इन अल्ट्रासाउंड, दैट पेन भी प्रेजेंट हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ फाइब्रोइड कैन बी देयर। सो पेन को फिर आप एलैबोरेट करोगे कि वो पीरियड्स के साथ कैसे एसोसिएटेड है, उसका रेडिएशन क्या है, जिसे हम कहते हैं ना साइट रेडिएशन, और एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, और इज इट एसोसिएट विद यूरिन, पैसेज ऑफ यूरिन और पैसेज ऑफ स्टूल और नॉट, और किस मेडिसिन से उसे रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये सारी बातें आपके डीडी को रूल आउट करेंगी। अच्छा, उसके बाद आपने उसका जो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग था, एज सच डीडी अगर निकालना है, तो डीडी के अंदर वो आपने बड़ा अच्छा आप कर रहे थे, बिकॉज यू आस्क्ड अबाउट ऑल द पॉसिबल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट कैन कॉज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सेकेंडली, आपने साथ थायराइड की भी हिस्ट्री ले रहे थे, आपने मेडिकल मेडिसिन कोई ऐसी ले रही है उसकी हिस्ट्री भी ली थी, कोएगुलोपैथी की भी हिस्ट्री ली थी, विच इज वेरी गुड। अच्छा, फिर एनीमिया, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज एक्चुअली अफेक्टिंग हर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि एनीमिया तो कम हुआ है। तो फिर आपने एनीमिया की भी डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है कि उसको एनीमिया कब से हुआ, आफ्टर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ, और उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इजी फटीगेबिलिटी है या नहीं, और साथ में कुछ कोई ओरल आयरन या ऐसा कुछ वो ले रही है या नहीं ले रही है, और डाइट, और वो सारा आपने सॉर्ट आउट करना होता है। और यस, यू कैन, बिकॉज HB इज ऑलरेडी 8, तो दिस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये भी रूल आउट कर लो कि इफ शी इज हैविंग थैलेसीमिया और नॉट। थैलेसीमिया की हिस्ट्री लेमन लैंग्वेज में भी हम इस तरह लेते हैं कि इफ देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन हर सेल्फ और इन हर फैमिली बिफोर, और स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, अगर उसको डायग्नोसिस बना था या नहीं बना था। और उसके अलावा जो है वर्म इन्फेस्टेशन की भी इवन इसमें हम पूछ लेते हैं कि डायरिया या इस तरह का कुछ हो तो नहीं। तो ये ये जो हिस्ट्री है ना, वो 3-4 पैराग्राफ्स में एक्चुअली डिवाइडेड है, और वो आपके फिंगर ना, ठीक है? तो द थिंग इज के इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए फरत आपने, क्योंकि आपकी स्पीच स्लो थी, आपको बोलते वक्त सोचना पड़ रहा था कि मैं क्या बोलूं इस वक्त, थोड़ी हैफेजर्ड थी, इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज इसलिए होना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने किस वक्त क्या बात बोली है। उसकी वजह ये है कि अगर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बोलेंगे, एंड यू आर टॉकिंग फर्स्ट अबाउट द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, and then you're talking all of a sudden you're talking about thyroid, and then all of a sudden you're talking about dysmenorrhea, मतलब अगर ऊपर नीचे चीजें चलती जाएंगी, तो फिर तो आपका ना, फिर वो एग्जामिनर उस चीज को रजिस्टर नहीं करते कि आपने वो चीज बोली थी या नहीं बोली थी। तो इसलिए आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि ऑर्गेनाइज तरीके से बोलना है। अगर किसी ने क्विकली मुझे 3-4 मिनट्स में हिस्ट्री बोल के दिखानी है इसकी, तो कर लें, तो फिर हम एग्जामिनेशन फरहत के साथ करेंगे जी। कर लो ट्राई। जी, किसी ने करना है, आसिया या फातिमा में से?
इस मैडम पेशेंट की मैडम मैं करना तो चाहती हूँ, कर लें जी मैडम। क्विकली। 3 से 4 मिनट्स है आपके पास जी। Assalamu alaikum. After mutual understanding, confirming the given biodata, I will ask her last menstrual period and how long she is married for. Then I will inquire about how long she is having the heavy menstrual bleeding, and how many pads she's soaking, and the is she's passing the clots, and after how many days she's having the next the cycle, and for the next cycle, is there any pain during the bleeding, before the menstruation, during the bleeding, and after the menstruation, and is she taking any medication for the heavy menstrual periods, and has she have the pap smear done, and what was its report? Is there any history of the lactation in the previous pregnancies, any history of the contraception use, or any history of the vaginal discharge? I will inquire her obstetrical background, the age of the previous childs, and whether they were normal vaginal delivery or cesarean section, any antenatal, intrapartum, or the postpartum complication, and the age of the last born. Are they alive and healthy? And then the patient details of her presenting complaints, that whether she's having excessive feeling of hotness or cold, excessive hot feeling or cold feeling, any weight gain or weight loss, any history of hair growth over the face, over the upper part of the body, any history of taking the blood thinning agents, or no, any history of blood transfusion in the past, any history of the diabetes, the hypertension or thrombophilia, or any renal disorder in the patient's immediate history, past history, or in her family history, and if the patient is having any history of the breathlessness, palpitation, or easy fatigability, any history of any injectable irons taken, and whether patient is not smoking or taking any addiction, or using alcohol, and whether she is socioeconomically well. ठीक है, फाइन। सो एक चीज याद रखें, बहुत सारे नहीं भी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया आज, लेकिन मेरे बहुत सारे लेक्चर्स में पहले भी है। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या एनी इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग या कुछ भी ब्लीडिंग से रिलेटेड आएगा, उसका हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, कि आप उसके अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को कैसे वैल्युएट कर रहे हैं। फ्रैंकली ऐसा पेशेंट भी एग्जाम में हो सकता है या सिनेरियो हो सकता है जिसमें एक्चुअली पेशेंट बार बार कंप्लेंट कर रही है ब्लीडिंग की, लेकिन उसको नहीं है। सो यू शुड नो एग्जैक्टली कि हिस्ट्री में आपने कैसे वैल्युएट करना है कि वेदर शी एक्चुअली हैज दिस प्रॉब्लम और नॉट। सो ऑलवेज रिमेम्बर। तो इसीलिए जब आप हिस्ट्री बोलते हो तो एग्जामिनर्स आर वेरी सेंसिटिव टू हियर एंड टू नो एग्जैक्टली कि आप क्या बोल रहे हो, टू नो और टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। और क्वांटिफिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती है सबसे पहले तो वो सारी डिटेल्स जैसे मैंने बोली है वो आपने अपने हिस्ट्री में स्ट्रक्चर डिस्कशन में खास तौर पे, या जब आप पेशेंट से डायरेक्ट भी पूछ रहे हो तो बहुत डिटेल में पूछना होता है कि कितने, एक तो ये कि पहले नॉर्मल साइकिल क्या था, यानी कि नॉर्मल साइकिल में कितने नंबर ऑफ डेज एंड और कितने नंबर ऑफ डेज ब्लीडिंग होती थी, रेगुलर साइकिल था, कितने पैड तब वो चेंज करती थी, कोई पेन और या कोई वो तो नहीं प्रॉब्लम था उसको साथ में, कोई और एसोसिएटेड कोई और प्रॉब्लम, बट और नाउ फ्रॉम जब से उसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई है तो अब इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल साइकिल अब उसका कितने डेज का साइकिल रहता है, और उसको कितना नंबर ऑफ पैड्स अब कितने चेंज होते हैं, पैसेज ऑफ क्लॉट्स है या नहीं है, अगर पैसेज ऑफ क्लॉट्स है तो कितने साइज के क्लॉट्स पास हो रहे हैं, और उसके अलावा कि आपको एसोसिएटेड पेन, और पेन का जहां लफ्ज आ जाए वहां पे डिटेल ऑफ पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू रूल आउट एग्जैक्टली। पेन का भी एक पूरा डीडी होता है। पेन के अंदर आइदर इट इज adenomyosis or it is a complicated fibroid or it can be any other pathology in the pelvis, but at the same time it can be UTI overlapping or any gut problem। so या कोई मस्कुलर पेन, तो इसलिए आपने उसकी साइट रेडिएशन और वो सारी चीजें पेन की रूल आउट करनी होती है। उसके अलावा क्वांटिफाई होती है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अनीमिया के सिम्टम्स पूछ के, या तो उसका अनीमिया आया होगा उसकी रिपोर्ट के ऊपर, या उसके सिम्टम्स होंगे अनीमिया वाले, या फिर ये हो सकता है कि वो ओरल आयरन ले रही हो या वो अपनी डाइट साथ इतनी मेंटेन कर रही हो कि इतनी ज्यादा अनीमिया कभी नहीं हुई जितना उसको ब्लीडिंग है।
तो ये सारी चीजें आपने वैसे एग्जाम में ही नहीं बल्कि असल लाइफ में भी इवेलुएट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक पेशेंट जिसको आप HMB समझ के ट्रीट करते जाओ, पता चले कि उसको HMB था ही नहीं. So whenever you are starting the history of HMB or irregular, especially irregular vaginal bleeding, और उसमें तो आप प्रेगनेंसी सबसे पहले रूल आउट करोगे, कॉन्ट्रासेप्शन को रूल आउट करोगे. समटाइम्स पेशेंट इज टेकिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और उस को कंटिन्यूसली रेगुलर ब्लीडिंग रहती है. ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि ये सबसे पहले रूल आउट करके आप आगे चलोगे, ताकि पता चले कि पैथोलॉजी है भी कि नहीं है. ठीक है. उसके बाद आप उसकी नॉर्मल साइकिल जरूर पूछोगे. ऑलवेज कंपेयर नॉर्मल विद एबनॉर्मल. पहले नॉर्मल साइकिल कि व्हाट वाज द एज ऑफ मिनार्की, और उसके बाद उसका उस जो साइकिल आता रहा वो कितने बाय कितने डेज का था, और वो सारा कुछ. और उसके बाद अब प्रेजेंट साइकिल का कंपैरिजन. और उसके बाद इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कितना अफेक्ट हुआ. और उसके अलावा फिर आगे आप चलोगे बाकी चीजें लेकर, जैसे कि DD पूरा बनाकर, और अब तक की क्या ट्रीटमेंट ली है जो भी. तो इस तरीके से आपने करना है. ठीक है. तो इसलिए मैं इसकी हिस्ट्री पे इतना एम्फोसाइज कर रही हूँ, क्योंकि हमारे गायनी के अंदर गिनती के 4-5 सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स आएंगे. ऑप्स की तैयारी करते हुए हम हमेशा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाते हैं. हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज, एनीमिया, कार्डियक डिजीज, ओलिगो पॉली ट्विन एक्सेट्रा. लेकिन जो गायनी का की तैयारी होती है पार्ट 2 एग्जाम की, उसके अंदर हम टॉपिक्स नहीं बनाते. हम फाइब्रॉइड एडिनोमाइसिस ऐसे नहीं बनाते, हम सिम्टम्स बनाते हैं. हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की तैयारी करते हैं, हम वजाइनल डिस्चार्ज की तैयारी करते हैं, हम इनफर्टिलिटी की तैयारी करते हैं, हम यूरिनरी सिम्टम्स की तैयारी करते हैं, ट्रू कवर यूरोगाइनी और वो सारा. हम मैस लोअर एब्डोमेन की तैयारी करते हैं. हम टॉपिक्स की हिस्ट्री नहीं याद करते, हम सिम्टम्स की करते हैं. तो गिनती के 5-6 सिम्टम्स ही हैं गायनी के. लेकिन इन 5-6 सिम्टम्स का एग्जैक्ट आपको फिर हिस्ट्री बहुत अच्छी आनी चाहिए. इसीलिए गायनी की हिस्ट्री कहते हैं कि इतनी लंबी नहीं होती जितनी ऑप्स की हिस्ट्री होती है, लेकिन उसमें पास इतना अच्छा नहीं होता है. बहुत अच्छे नंबर लेना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, क्योंकि आपने एक्चुअली एक बात तो ये कि बहुत छोटी वो होती नहीं है. दूसरी बात ये कि उसमें यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. कहीं ऐसा ना हो कि नॉर्मल को एबनॉर्मल समझ के ट्रीट कर लो. ऐसा ना हो कि पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी नहीं और उसको आप हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग समझ के तो आप उसको दवाइयां हार्मोनल मेडिसिन पे डाला. तो आपने प्रेगनेंसी भी रूल आउट करनी है, आपने कॉन्ट्रासेप्शन भी रूल आउट करनी है. उसके बाद आपने उसकी DD बनाकर उसकी क्वांटिफिकेशन नॉर्मल और एबनॉर्मल साइकिल को कंपेयर करके फिर आगे पूरी हिस्ट्री लेनी होती है. तो दिस इज द कंप्लीट हिस्ट्री इन HMB, चाहे वो जिस मर्जी वजह से हो रही हो. ठीक है. तो आई थिंक इट्स क्लियर. और तो नहीं कुछ ऐड करना. अब हम एग्जामिनेशन करें. डॉक्टर फरहत. ठीक है. आई थिंक पता नहीं डॉक्टर फरहत का डिस्कनेक्ट हो गया. कहाँ है डॉक्टर फरहत है? हेलो जी. मैम. ठीक है. अच्छा मैम कुछ इसमें और तो हमें, नहीं इसमें ऐड करना? जी. हाँ जी मैम हमें इसमें जो है ना, जो मास आप बता रही थी उसकी भी हिस्ट्री लेनी चाहिए थी, कि ये मास जो है या मैस. गोला. यस. हाँ जी. बिकॉज ये इसमें दे दिया अल्ट्रासाउंड के ऊपर के फाइब्रोइड्स है मल्टीपल. तो पेशेंट से आप जी. फिर पूछते हो शी हैज फीलिंग ऑफ एनी मास लोअर एब्डोमेन. कई दफा फाइब्रोइड वाला पेशेंट सिर्फ मास लोअर एब्डोमेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है. तो अगर तो पेशेंट को है मास लोअर एब्डोमेन, तो फिर मास की हिस्ट्री होगी कि पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ, कब से पेन कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा. उसके बाद प्रेशर सिम्टम्स की कि यूरिनरी और बाउल प्रॉब्लम्स हुई, और फिर इसका पीडल एडीमा और वो सारी चीजें. ठीक है. ये मैथ्स की हिस्ट्री हो जाएगी. जी. एग्जामिनेशन. फरहत आप बता दो हम एग्जामिनेशन में क्या करेंगे. हेलो जी. एग्जामिनेशन किसी पेशेंट का. मैम. मैम यहाँ मेरी बेटी रो रही है, मैं बोलती जाऊँ? आवाज आ रही मैडम है? मैं हेलो. जैसे आप कंफर्टेबल हो, वरना किसी और से कह देते हैं. नहीं नहीं आसिया कर ले. मैं बताती हूँ. कोई बात नहीं. आप मैम अगर उसे सेटल करना चाह रहे हो, आसिया एग्जामिनेशन कर लेगी, आप इन्वेस्टिगेशंस पूछ लेना जैसे कंफर्टेबल हो. आप आगे कर मैनेजमेंट कर लीजिएगा. मैं आप इन्वेस्टिगेशन और वो एग्जामिनेशन बता देती हूँ, मैं आप बता मैनेजमेंट देती हूँ बता कि कब दीजिएगा करनी चाहिए बेटी को, अगर इसके आपको बाद. प्रॉब्लम हो रही है. वरना आप कर ले मैडम, इनको ही करने दें. हाँ हाँ जैसे मैं डॉक्टर. कंफर्टेबल हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. अल्फा ये दरवाजा बंद कर दें. Now, after this, I will do general physical examination to rule out comorbidities, to rule out the hypertension, pallor, thyroid, and features of PC or hyperandrogenism. I will calculate my patient BMI and do breast examination and auscultate chest.
I will do per-abdominal examination. I will look for the scar marks, hernial orifices, and distension from the foot end of the patient. And after that, I will palpate for any tenderness, visuomegaly, or mass. And if there is mass, I will check for the site, size, surface, margin, mobility, percussion, or tenderness, or consistency, or lower limit of the mass is reachable or not. And after that, I will do local examination of my patient. I will inspect for the health of vulva, any bleeding or discharge, or warts. I will do per speculum examination in dorsal position for the cervical vaginal health, especially for vaginal discharge, bleeding, or any polyp or any cervical pathology. And I will take pap smear if due. After that, on biomail examination, I will check for walls of the vagina, consistency of cervix. I will check the size, position, mobility, or any pulsation or tenderness in the uterus. I will check for any mass separate from the uterus or not, or it moves with the uterus or not. And then I will feel for any indulation or fullness in any exercise. And I will do after that. After this, I want to summarize my patient, ma'am. चलो गुड। एग्जामिनेशन आपका बहुत बेहतर था हिस्ट्री से। एक चीज और इम्पोर्टेंट आप अभी से याद कर लो, और प्लीज इसको ऐसे ही करना कि दो बातें एक्चुअली। एक तो ये कि मेडिकल टर्म्स बहुत ज्यादा बार बार यूज नहीं करनी। फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म, आप वो फीचर्स बोल दो कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ फेशियल देखना चाह रहे हो क्या, अगर आपके ख्याल से ये इतना इम्पोर्टेंट है। और बाकी इफ यू आर यूजिंग एनी मेडिकल टर्म्स देन यू हैव टू यूज द राइट एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन ठीक यूज होनी चाहिए। जैसे कि आपने मिनार्की को मिनार्क बोला था, इट्स नॉट लाइक दैट, इट हैज टू बी मिनार्की। पेलर को आप पेलार बोल रहे थे, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज पेलर। एंड तो थोड़ा सा ये जो मेडिकल टर्म्स हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, स्पेशली ये दो चार ही बातें जो हमारे गायनी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अच्छा, बार बार मैं बता रही हूँ, आपने बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स यूज की एग्जामिनेशन पे भी। चलो थोड़ी बहुत तो फिर भी आप कंसिडर कर लेते हो, जैसे हम बीएमआई की बात कर रहे हैं, या इवन देखो जब हम कहते हैं कि साइंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, हम कभी इवन एसाइटिस भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन चलो एसाइटिस भी बंदा बोल दो। लेकिन फिर भी जो फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म, नहीं, देन जस्ट से ऑल दोस फीचर्स। जैसे आपने ये नहीं कहा कि आई विल चेक फॉर फीचर्स ऑफ अनीमिया, आपने आपने पहले चेक किया पेशेंट का। तो इसी तरह से फिर जब उसके भी फिर फीचर्स अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो बोलोगे। बट ओवरऑल एग्जामिनेशन वाज अ लॉट बेटर एक्चुअली। मैम, आपने जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया यू डिड वेल, एक्सेप्ट कि आपने मैथ्स को थोड़ा और इलेबोरेट कर देते कि लोअर लिमिट रीचेबल, शायद आपने किया होगा कि साइट, साइज, लोकेशन, वो सारा, सरफेस कैसा है, वो लाइंग स्किन कैसी है, उसके बाद उसकी मोबिलिटी है या नहीं, एंड देन आपने परकशन करके साइंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन देखना होता है। और फिर आप पेल्विक एग्जामिनेशन भी आपका ठीक था। उसके अंदर दो तीन चीजें, यूट्रस के ऊपर पहले कमेंट करोगे, राइट। अब आपने उसके मैथ्स बनाकर किया कि मैं अलग से मैथ्स को करूंगी कि इफ इट इज मूविंग विद द यूट्रस और नॉट। बट अब देखो, बिकॉज अल्ट्रासाउंड के ऊपर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स दिए हुए हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये है हमारे माइंड में कि जब मैं पेल्विक एग्जामिनेशन उसका करूंगी तो यस यूट्रस विल बी enlarged एंड देयर बी रेगुलर बॉर्डर्स, उसकी कंसिस्टेंसी फर्म होगी, और इट शुड बी नॉन टेंडर अदरवाइज। अगर ये टेंडर है या वो सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का है या वो इरेगुलर बॉर्डर्स वाला नहीं है तो शायद ये एडिनोमायोसिस है। तो you have to first comment on these four features before you move forward to anything else, जिसके अंदर आप यूट्रस का साइज एंटीवर्टेड रिट्रोवर्टेड तो करोगे, लेकिन if you know size is more than normal because of the mass or fibroid or anything, so if the size of uterus is more than normal then you have to comment on the consistency, tenderness and mobility। उसके बाद आप फॉर्निसेस या किसी और चीज की बात पे जाओगे। तो आपने इसको इस तरीके से जरूर, स्पेशली आपने बॉर्डर्स पे जरूर कमेंट करना है कि वो रेगुलर थे या नहीं थे, उसी से रूल आउट होगा कि फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन भी एक्चुअली जब हम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे हिस्ट्री भी आपने उस लिहाज से अच्छा बता रहे थे कि यू हैड डीडी इन योर माइंड, जो कि गायनेकोलॉजिकल और नॉन गायनेकोलॉजिकल रीजंस को आप लेके चल रहे थे। इसी तरह इफ यू आर डूइंग द एग्जामिनेशन यू हैव डीडी इन योर माइंड, क्योंकि हमारा हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डीडी बहुत शॉर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से वो पूरा फिर हमने डीडी कवर करना होगा। जी yes, yes. ठीक है, तो इस तरह से। ओके, किसी ने कुछ और एग्जामिनेशन पे ऐड करना है, कुछ हमने मिस कर दिया हो तो बताएं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस भी मांग लें फरहत। मैम, हम जी जैसे हाइपर एंड्रोजिनिज्म वगैरह को स्किप कर सकते हैं मैम?
देखो, मतलब ये कुछ लोग पेशेंट ओलिगोमेनोरिया या वेट गेन ओलिगोमेनोरिया या इस तरह के उसमें नहीं है। हाइपर एंड्रोजनिज्म HMB नहीं करता। ठीक है। तो तो हमारी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, अगर आप उसमें ही रह के करो फोकस्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता, 10 मिनट्स के अंदर एक्सटेंडेड टॉक्स जो है उसमें आपने हिस्ट्री, अगर स्पेशली आपका जो स्टेशन ही नॉर्मली फाइब्रोइड का स्टेशन 2 स्टेशन पे डिवाइड होकर आया होता है, मतलब आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन एक में करके फिर अगले स्टेशन पे आप जो हो मैनेजमेंट डिस्कस करते हो। तो तो आपने मोस्टली एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा फोकस्ड बोलना होता है। BMI इज इम्पोर्टेंट। आपने पल्स की बात की बिकॉज एनीमिक भी है पेशेंट। इसके अंदर अगर आप JVP की भी बात करो, बिकॉज आई एम श्योर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वो सारा कुछ भी होगा, तो कार्डियक थोड़ा सा भी इवेल्युएशन हो जाएगी। पैलर की बात आप करोगे और थायराइड के सारे देखोगे, आइस का और थायराइड इलाजमेंट और वो सारा। और उसके बाद आप उसका चेस्ट एग्जामिनेशन में स्पेशली अगर आप कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन कर लो तो वो भी अच्छा है। एंड देन यू डू द स्पेसिफिक एग्जामिनेशन जिसमें एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन आता है। और एब्डोमिनल के अंदर वी ऑलवेज स्टार्ट विद इंस्पेक्शन विच यू डिड वेरी वेल, एंड देन यू डू द वो सारा कुछ पेल्पेशन, और पेल्पेशन स्टार्ट विद द सुपरफिशियल एंड डीप पेल्पेशन, एंड देन यू डू द वही हमारा जो लोकल मैस वाला एग्जामिनेशन, एंड देन यू डू परकशन, एंड देन यू डू द पेल्विक एग्जामिनेशन जिसके अंदर उसी तरह इंस्पेक्शन और वल्वा वजाना आ जाएगा। फिर स्पेकुलम एग्जामिनेशन और सर्विक्स एंड पैप स्मेयर, एंड देन बायमैनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है। चलो, गुड। अब मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। चलो, नहीं सॉरी, इन्वेस्टिगेशन फरत। yes ma'am. Ma'am, first of all, I will ask about the CBC with the HB, TLC, and platelets. 8 Uh, 8. दिया हुआ Ma'am, सिनेरियो में 8 HB है। ठीक है मैम, आई TLC वांट और टू अबाउट प्लेटलेट नॉर्मल है। MCV, MCH और MCSC. माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। Okay, ma'am, is there any ferritin report or not? Ferritin level, ma'am. फेरिटिन भी लो है, 6 है फेरिटिन। अच्छा, ठीक है मैम। what is her blood group? Blood group, B पॉजिटिव। ma'am. I want to ask about her RBS, or is there any HbA1c or RBS report? Random blood sugars. 92 शुगर। Midstream urine analysis for the protein, glucose, nitrate, pus cells or RBCs. नॉर्मल। And मैम क्योंकि पेशेंट हमारा रिप्रोडक्टिव एज का है तो मैं इसकी पीटी के लिए भी पूछूंगी। इसके लिए मैम पीटी, इसका पीटी कोई बीटा एचसीजी पीटी लेवल क्या? या यूपीटी मैम, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट मैम, पेशेंट हाँ, पूरा रिप्रोडक्टिव बोले एज ना। में। यस मैम, यूपीटी नेगेटिव है। ठीक है। और देन आफ्टर दैट मैम, आई वांट टू आस्क अबाउट हर ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। ठीक है, वो हम बात करते हैं अभी। ठीक है, ठीक है मैम। उसके लिए उसमें भी मैं इसका एंडोमेट्रियल थिकनेस, साइज ऑफ यूट्रस, मायोमेट्रियल एकोजेनेसिटी और ट्यूबो ओवेरियन हम्म मास। मैम अगर जो मास है ना, जो गोला था जो भी, वो अगर 12 cm से ज्यादा होता या बड़ा होता तो हम जो है ना फिर इसके लिए ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन भी मांग सकते थे। ठीक है, गुड। बिल्कुल ठीक है। सो गुड, मैम नॉट बैड। हम्म। मैम लेकिन अब जी, मुझे मास पता नहीं है कि वो अपर एब्डोमिनल पे, क्योंकि मैंने वो फाइंडिंग हम वन बात डब्ल्यू। कर लेते हैं। इट्स ओके। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट मांगना है एग्जाम के अंदर तो यूपीटी ने हमेशा बीटा HCG मांगे, हमेशा 100% कंफर्म वाली चीज मांगे। तो बाकी तो आई थिंक द रेस्ट वाज ऑल राइट। एक चीज और मिस की है, 2 चीजें। कौन मैम बताएगा? अगर मैम हिस्टेरोस्कोपी या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी वगैरह पूछ सकते हैं। गुड गुड। और एक चीज मिस कर दी और। पेप्समेयर रिपोर्ट मैम, पेप्समेयर रिपोर्ट। पैप्समेयर, बिल्कुल। पैप्समेयर रिपोर्ट अभी तक अगर हुई हुई है। सेकेंडली, अगर अभी तक कोई एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग हुई हुई है, क्योंकि शी इज 45 and she's got heavy menstrual bleeding and we know she has got fibroids also, although we don't have the report of the TVS or ultrasound with the endometrial thickness, but again जो factors हमें पता है फाइब्रॉइड बनाते हैं वो endometrial hyperplasia भी करते हैं, and she is 45। तो मैम इसका और हो मैंने सकता है किसी ने endometrial sampling की हो।
जी। मैम या इसने ट्रीटमेंट, अगर इससे मैंने पूछा नहीं कि ट्रीटमेंट इस ले चुकी हो क्या पता मैम, और फेलवर्ड कर चुकी हो ना, तो फिर भी हमारी एंडोमेट्रियल बायोप्सी की इंडिकेशन बन जाती है ना, अगर हम्म। पेशेंट ट्रीटमेंट फेलवर के साथ हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी ये सारी रिपोर्ट्स और जिस तरह, और अगर अल्ट्रासाउंड थोड़ा और अच्छी तरह मांग लेते हैं, अच्छा मांगा था बट अगेन मैम आप अगर मैं उसकी उसकी नेचर, एंडोमेट्रियल। हम्म। मैम मास की नेचर, लोकेशन और साइज के लिए पूछूंगी अगर मास है इसमें, मुझे देते हैं आप। बाकी मैं इसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस, साइज ऑफ यूट्रस, मायोमेट्रियल हम्म। एकोजेनिसिटी और हम्म। ट्यूब ओवेरियन पैथोलॉजी या मास के लिए पूछूंगी। बिल्कुल। एंडोमेट्रियल थिकनेस, रेगुलरिटी, ब्लड फ्लो, एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एको टेक्सचर, एनी पैथोलॉजी इन द मायोमेट्रियम जिसके अंदर आपका फाइब्रॉइड्स आ जाएंगे, एंड एनी पैथोलॉजी इन द एडिनेक्सा और द मास प्रेजेंट और रीजन, और इफ देयर आर फाइब्रॉइड्स, द नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स एंड फीगो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड। ठीक है, इस तरीके से अल्ट्रासाउंड मांग लो। ठीक है मैम, फिगो टाइप एंड साइज ये मैम अगर बता दें आप मुझे मास हाँ, का। कहो बिल्कुल। चलो गुड। सो इसके अंदर बाकी आपने सारी ठीक मांगी है इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, सो अब हमारे साथ मैनेजमेंट किसने करनी है? आसिया ने, फातिमा ने। एक कर ले, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा कोई कर लेगा। मैडम जिसको आप बोल दें। चलो आसिया कर रही है क्योंकि केस हमारे साथ साथ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में फातिमा को कर देंगे। ठीक है फातिमा जी। कहाँ कहाँ गई जी मैडम, ठीक है, फातिमा? थैंक यू मैडम, नेक्स्ट मैं कर चलो लूंगी। थैंक यू, जरूर इंशाल्लाह जी आसिया। सो आप इसकी मैनेजमेंट हमें बता दो। I will counsel my patient that she is having empathetically counsel my patient that she is having a benign pathology of the uterus, that is more probably the leiomyoma of the uterus. And first, I will involve the multidisciplinary team in her management. My senior gynecologist and hematology team and senior anesthetist. I will first treat her anemia, correct her anemia, and after excluding the any other cause of the anemia other than the iron deficiency, then if there is a iron deficiency anemia, then I will correct her hemoglobin by at this stage by giving her because there is no urgency in her symptoms, so I will give her injectable pharyngect, at least 2 doses of pharyngect, and at a gap of 2 doses of pharyngect at least with a gap of 2 to 3 days, and then I will repeat her CBC after 5 days. Then if I will my aim is to top up the hemoglobin greater than 11 grams per deciliter. I will review the endometrial sampling of the patient and the ultrasound report of the patient about the endometrial thickness, whether and endometrial thickness and the histopathology of the endometrial sampling, whether it is a typical or atypical hyperplasia, exclude the malignancy. Then I will go for the fecal classification of the fibroid, about the location of the fibroid, the size of the fibroid, and whether it's a submucosal, intramural, or subserosal, the number of the fibroids, whether they're anteriorly, posteriorly, and then depending upon the size of the uterus, if my patient is I will ask the patient's fertility desires. As my patient is 45 years of age and she is para 2 plus 0, if she has the fertility desires, I will confirm whether she is not using any contraceptive yet, and if she is not using any contraceptive, I will ask her fertility desires, and I will then plan the management accordingly, according to the size or according to the number and the size of the fibroids. If my patient desires for the fertility, then my aim is to conserve the uterus. If the size of the fibroids it's small, they are submucosal and intramural, they are not abetting or distorting the cavity, then for my patient I will prefer for the insertion of the Mirena for a short period of time. In the meantime, her bleeding settles and her the size of the fibroids regresses, एक मिनट and रुक then जाए। आपकी बड़ी जबरदस्त स्पीच है, आप बड़ा अच्छा बोलते हो, लेकिन इसको काफी ठीक होने के, इसमें काफी 2-3 ब्लंडर्स हुए हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर, बड़ा अच्छा आपने स्टार्ट लिया था, लेकिन पहले आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस तो पूरी कर लो। हाउ कैन यू मैनेज और हाउ कैन यू काउंसल योर पेशेंट without knowing
द रेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्पेशली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, क्या पता उसके फाइब्रॉइड 2-3 छोटे छोटे सीडलिंग बाहर की तरफ है और फाइब्रॉइड कॉज ही नहीं है ब्लीडिंग का, राइट? तो आप फिर क्या उसे काउंसल करोगे? आप उसे अपनी फिर फर्स्ट स्टेटमेंट काउंसलिंग की तो ये होगी ना कि फाइब्रॉइड यूट्रस है बट इट इज नॉट कॉजिंग द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल कॉज प्रोबेबली, या you would like to do DNC diagnostic, endometrial sampling, and then you can decide कि वो उसका क्या, एटसेट्रा Yes. एटसेट्रा। तो आपने एक चीज, अच्छा उसके बाद आगे जाके जहां पर आप सर्जरी शायद प्लान कर रहे हो, तो वो हम आगे भी बात करेंगे। 45 years पे जाके यू डो नॉट cater the fertility desires of a patient if she is subfertile, even if she is nulli parous, even at the age of 45, it's better that she should not conceive, right? And secondly ये कि even if she is 45, तो अब या पहले उसकी माइमेक्टमी करोगे, फिर उसकी यूट्रस बचाओगे, फिर उसे प्रेग्नेंट करोगे, एंड दिस पेशेंट ऑलरेडी हैड टू चिल्ड्रन, शी इज पैरा टू। तो इसमें तो अगर यूट्रस बचानी है तो वो सोशल इश्यूज की वजह से बचाई जा सकती है, बिकॉज पेशेंट मे नॉट वांट टू लूज हर यूट्रस, बट नॉट बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी थिंग। तो ये काफी बड़े ब्लंडर्स है। तो हमेशा एक बात याद रखें आप, अच्छा आपकी स्पीच है बट ऑलवेज फर्स्ट जब आपको मैनेजमेंट शुरू हो तो मैनेजमेंट में बात पहली स्टार्ट करने से पहले अपनी पेपर की तरफ देखें कि आपकी कोई एक भी रिपोर्ट तो नहीं है जो रह गई हो। कहीं ऐसा ना हो कि टाइप ऑफ अनीमिया निकालना रह गया, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई ब्लड ग्रुप भी रह गया या कुछ और, कोई शुगर उससे नहीं दी, क्या पता डायबिटिक हो, साथ साथ वो भी लेके चल रहा हो। तो आपने सबसे पहले एग्जामिनर से कहना है कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है? और फॉर एग्जांपल अगर इसका फाइब्रॉइड्स वाली का अगर हम अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने आपसे कहा था कि शी हैड मल्टीपल फाइब्रॉइड्स ऑन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, तो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में अब मैं आपको रिपोर्ट भी दे देती हूँ। तो इसके अंदर 4 into 5 centimeters पोस्टीरियर वॉल पे है, एक 3 into 2 centimeters एंटीरियर वॉल पे है। सो देर आर लाइक अराउंड 3 or 4 फाइब्रॉइड्स गिवन ऑन ultrasound, and they are all intramyometrial or subserosal, and और इसमें से वन इज इंडेंटिंग इनटू द कैविटी ऑल्सो, ठीक है? उसके बाद जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट बोलोगे काउंसलिंग में, तो आप बोलोगे कि आई वुड लाइक टू काउंसल माई पेशेंट एंड हर अटेंडेंट्स दैट हर प्रॉब्लम और हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सीम्स टू बी बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड यूट्रस, एंड विच इज अ बिनाइन कंडीशन एंड इट इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये बात आप बोलो ना पेशेंट, ये 2-3 स्टेटमेंट आपने गायनी के अंदर जरूर बोलनी है कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है उसका, किस वजह से वो चीज हो रही है, कहीं वो कैंसर तो नहीं है, और क्या वो ट्रीटेबल है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद इफ यू वांट टू इन्वॉल्व अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम तो वो जरूर करो। तो उसके अंदर आप खुद इस वक्त आप वहां बैठे हो कि आप ये नहीं कहोगे कि मैं एक सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करूंगी, आप खुद ही वो हो, ठीक है? सो यू विल से कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम विल इन्वॉल्व अ गायनोकोलॉजिस्ट एज माई सेल्फ, और जिसको भी आप हेमाटोलॉजिस्ट को कर रहे हो या बिल्कुल ठीक रेडियोलॉजिस्ट को आपने साथ किया था, वो सारा कुछ, ठीक है? तो इन सबको आपने इन्वॉल्व किया, एनेस्थेटिस्ट को भी। उसके बाद आपने एसोसिएटेड इसके सिम्टम्स थे, आपने कहा मैं अनीमिया को ट्रीट करूंगी, और वो आपने ट्रीट किया फेरेंजेक लगा के। इस तरह नहीं ट्रीट करना अनीमिया को। गायनी के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, वो आपकी स्टेटमेंट भी ठीक थी कि डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी ऑफ सर्जरी। सर्जरी की अर्जेंसी कैसे डिसाइड हुई? सर्जरी की अर्जेंसी इस तरीके से डिसाइड हुई कि अ, उसे हर पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, कि अब उसके नेक्स्ट पीरियड्स की जो डेट है वो कितनी दूर है। ऐसा ना हो कि अभी आज के दिन आपने उसे 2 फेरेंजेक लगाए हैं, ठीक है, और अभी 2 हफ्ते बाद उसकी एचबी बढ़ेगी, 8 से शायद 10 या 9.8 हो जाए, लेकिन उससे पहले ही उसको हैवी ब्लीडिंग दोबारा हो गई है, और बाद में जब वो 3 डेज के बाद आपके पास एचबी करा के आई है तो डिस्पाइट फेरेंजेक नाउ शी हैज कम विद अ रिपोर्ट ऑफ 7, ठीक है? तो सर्जरी की अर्जेंसी इस केस में, यू शुड बेटर डू द सर्जरी बिफोर नेक्स्ट पीरियड्स, ताकि अगले पीरियड्स आने से पहले कॉज निकल जाए, ठीक है? एक चीज। उसके अलावा ये कि आप जो हो तो मैनेजमेंट में आपने ये 2-3 चीजें, तो आपने ये कहना है कि अर्जेंसी मेरी उस पर डिपेंड करती है, और अगर पेशेंट की 8 एच बी है और उसको अगले हफ्ते पीरियड्स आने वाले हैं, तो आप उसका उस अगर आपने पीरियड से पहले ही सर्जरी करनी है तो अगर ब्लड भी लगाना पड़े ऐसे केस में, तो आप पैक्सेल लगा के 2 या 3 इन हैंड रख के फिर आप सर्जरी कर लेते, ठीक है? तो ये प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर आ जाता है मैनेजमेंट, कि आपने ट्रीटमेंट क्या देनी है।
She's 45. I would like to do her at least endometrial sampling before I go ahead, even for any other procedure, any surgery or any other procedure that I'm considering. उसकी वजह ये है कि मेरी endometrial sampling decide करेगी कि मेरा ovaries का मैंने क्या करना है. तो मुझे endometrial sampling और pap smear एक्सक्यूज मी दोनों की रिपोर्ट चाहिए, ताकि मेरा इस चीज का फैसला हो. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप अब फाइनल आप क्या डिसाइड कर रहे हो आसिया इसके लिए, पेशेंट के लिए? आपने सर्जरी डिसाइड की थी? मैडम सर्जरी नहीं डिसाइड की थी मैंने इसका मेरे जहन में था कि मैं इसकी अनीमिया करेक्शन करूंगी, और मेरे जहन में था, मैं बोलना भूल गई कि मैं इसको प्राइमरी 10 पे रखूंगी इन द मीन टाइम, जब तक कि मैं उसका फाइनल जो मेरा मैनेजमेंट प्लान ऑप्शन है वो उसको मैं नहीं करूं. लाइक प्राइमरी 10 पे रख के मैं इसको फेरेंजाइट करके इसका अनीमिया करेक्शन करूंगी, और फिर मैं इसकी जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन प्लान करूंगी विद काउंसलिंग, और उसके प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगी पेशेंट को. तो सक्सेस. बताएं आप क्या करोगे, वही बताओ ना जैसे एग्जाम में बताओगे. Okay, madam, I will correct her hemoglobin by giving. I will counsel my patient that I will. She is having the small fibroids, and they are not very much distorting the cavity, and she is नहीं, young मैंने patient. कहा डिस्टॉर्टिंग द कैविटी है. मैंने आपको जो रिपोर्ट दी है उसमें मैंने इसमें आपसे कहा है मैडम कि 6 से 7 फाइब्रॉइड्स है. एक इसका जो सिक्स. लार्जर है वो 4 into 5 centimeters है, बाकी 3 into 2 centimeters के हैं, बट वन इज इंडेंटिंग इनटू द कैविटी ऑल्सो. Even then, I will counsel my patient that my first aim will be to preserve her ovaries, and if I will try to preserve her uterus also. First option I will give her that she should go for the radiological management, that is if the facilities are available in my center for the uterine artery embolization. And I will tell her the details of the procedure, that in this procedure there is a high success rate, and by a year or two it is a possibility that these fibroid they regress in the size, and the patient improves with her symptoms and her bleeding settles. And there is a high success rate, and even if she has a fertility desire, there is a chance for fertility also. But there is also a So chance you for will the allow her to get pregnant after 45? नो मैडम. मैडम नहीं, अभी जो आपने सारा इतना बताया इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं. हाँ जी. ठीक है. Madam, I will give her the option for the uterine artery embolization. But if my patient wants a definitive treatment, she said that no, I want the definitive treatment and I don't want to take any risk. Then I will counsel her for the hysterectomy with bilateral salpingectomy. But I will try to conserve her ovaries if the ovaries they are in the good condition. And ovaries, and then I will अच्छा, later on. देखो 2-3 बातें इसको हम और भी डिटेल में करेंगे, बट इसमें 2-3 बातें. एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आपने मैनेजमेंट बोलनी शुरू की तो आप वंस एंड फॉर ऑल ही वो मैनेजमेंट नहीं दे देते हो. आप नंबर 1 2 3 करके पहले बोलते हो कि ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट की उस पेशेंट के अंदर जो आप उसे ऑफर कर सकते हो. ठीक है. आपने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन अगर नंबर 1 पे, नंबर 1 ऑब्वियसली वही होगी जो आपको लगेगा कि आपके हिसाब से बेस्ट है फॉर द पेशेंट. तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि जब आपने जो प्रायोरिटी वाइज आपने बोली है ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उसमें नंबर 1 वही है जो आपको लगता है कि उस पेशेंट के लिए बेस्ट है. ठीक है. तो इस तरह के केस में जब आप ऑप्शंस उसको देने लगे हो, उससे पहले आपने एक और चीज बोली. आपने कहा कि मैंने इसको प्राइमरी पहले अनीमिया करेक्ट किया, फिर मैंने इसको प्राइमरी एन के ऊपर रखा. नहीं नहीं मैडम, जब तक कि इसका एनीमिया करेक्शन हो रहा है, मैं पेशेंट को जैसे ही मेरे पास पेशेंट आई है, मैं उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आई विल स्टार्ट प्राइमोलिटेन in the dose of 5 milligram TDS to make my patient amenorrheic पर or at उसको तो least. रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है इस वक्त, तो वो ब्लीड नहीं कर रही, तो फिर क्यों प्राइमरी टेन दिया? हमने क्लैरिटी से इवन इस सिनेरियो में भी दिया हुआ था कि इट वाज रेगुलर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, नॉट लाइक कंटिन्यूअस ब्लीडिंग. हाँ मैडम, फिर नहीं देंगे. अच्छा, सही मैडम. देखिए मेरी बात सुने. द थिंग इज कि इवन अगर उसे कंटिन्यूस भी होती है, द कॉज वाज फाइब्रोइड, तो प्राइमलेट वुड नॉट हैव करेक्टेड हर ब्लीडिंग. फाइब्रोइड का जब डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड के ऊपर होगा तो मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी भी मेडिसिन का नाम बहुत सोच समझ कर लेना. ठीक है.
उसकी वजह ये है कि फाइब्रॉइड्स के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट, प्राइमेलेट इज नॉट अ ट्रीटमेंट और इज नॉट इवन अ टेम्पररी ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड यूट्रस. इट डजंट इवन श्रिंक द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड. इट डजंट रिड्यूस ब्लीडिंग विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड. तो प्राइमेलेट का नाम आपने पता नहीं वैसे नहीं लेना. अच्छा, उसके बाद ये कि आपने, अगर जैसे मैं आपसे कह रही थी कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस फिर आप हमेशा नंबर 1 2 3 करके बोलते हो, ये नहीं बोलते हो कि आपको लगा कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ही बेस्ट है तो बस उस पे ही एम्फसाइज किया जाओ. मैडम आप इसको बोलोगे कि आई विल गिव हर. GnRH मैडम इसको GnRH एनालॉग्स पे रख सकते हैं जब तक कि इसकी एनीमिया करेक्शन करें? नहीं, नहीं। जीएनआरएच एनालॉग, जीएनआरएच एनालॉग आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपने देना किस के, फाइब्रॉइड के केस में किसको दिया जाता है. फाइब्रॉइड की ब्लीडिंग को ठीक करने के लिए जेएनआरएच नहीं दिया जाता. फाइब्रॉइड का साइज रिड्यूस करने के लिए जरूर दिया जा सकता है, या ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव सर्जरी में ब्लड लॉस को कम करने के लिए आप जेएनआरएच एनालॉग्स दे सकते हो. और वो एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, बेइंतहा ऑस्टियोपोरोसिस करता है. उसके कई दफा आपको पेशेंट को जीएनआरएच के साथ किबलोन वाली एचआरटी टाइप देनी होती है ताकि उसको सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस और नई मुसीबतों से बचा सकें. उसके अलावा इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, और अगर जैसे ही जीएनआरएच बंद करेंगे तो वो फाइब्रॉइड रिवर्ट कर जाएगा, यानी दोबारा वापस आ जाएगा. इसलिए जब भी किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का नाम लेना है फाइब्रॉइड का, तो उसमें आपको प्रोज एंड कॉन सारे पता हो. अच्छा, उसके बाद ये कि आपने ट्रीटमेंट ऑप्शन नंबर 1 2 3 कि आई विल गिव हर ट्रीटमेंट ऑप्शन. नंबर 1, बिकॉज हर फैमिली इज कंप्लीट, शी इज 45, I will offer her uterine artery embolization, which will be a minimally invasive thing, and it has got a higher success rate. और वो फायदे और नुकसान, नुकसान क्या बोलोगे कि she has got multiple fibroids and one is indenting into the cavity also. नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि because of the multiple fibroids, sometimes uterine artery embolization doesn't work or doesn't have success rate as good as in those जिनका single fibroid है. ठीक है. तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में उस तरह के कई दफा रिजल्ट्स नहीं होते. एक चीज, दूसरी चीज ये कि शी ऑलरेडी हैज 8 हीमोग्लोबिन, और एक तरह से अगर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज नॉट लाइक 100% सक्सेसफुल, तो फिर जाहिर बात है फिर उसको एक और ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा विच विल बी सर्जरी. और पहले ही ATH भी हुआ हुआ है, ब्लड लगाया या उसको जो भी लगाया आपने, आयरन लगाया था, और अगर हिट एंड ट्रायल है और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का भी फेलियर हो गया है, तो फिर उसका प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, फिर और एच भी कम हो जाएगा. तो ये प्रोज एंड कॉन्स बता के यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, फिर आप नंबर 2 की ऑप्शन बताओगे, नंबर 2 पे जो भी आपके लिए था. ठीक है, तो आपने कभी भी एक चीज को लेकर नहीं चलना कि वही बेस्ट है. तो नंबर 2 पे आपके लिए मेरा ख्याल है सर्जरी थी. आपने सर्जरी के लिए हिस्टेक्टमी बोला और सेल्फ इंजेक्टमी बोला. जी ये जो आप मैडम। बार बार फर्टिलिटी और वो बातें कर रहे हो, वो उन पेशेंट्स में जो 30s में है. ठीक है, ये तो है ही 45+. तो इसके अंदर जब आप हिस्टेक्टमी की बात करोगे तो उसमें फिर आपका सबसे पहले रूट आ जाएगा कि कौन से रूट के थ्रू कर रहे हो. आर यू डूइंग इट लैप्रोस्कोपिकली और डूइंग ओपन सर्जरी? इफ यू आर डूइंग ओपन सर्जरी तो कौन से इंसिजन से कर रहे हो, और फिर जो इंसिजन कर रहे हो उसकी सर्जरी में क्या स्टेप्स करोगे. आप बात करोगे कि आई हैव डन द endometrial sampling and as it was normal and there was no family history of CO ovary breast or endometrium present in the family, इसलिए मैंने ओवरीज कंजर्व की. ऐसे नहीं कह देना कि इफ द ओवरीज वर इन अ गुड कंडीशन. ओवरीज गुड कंडीशन में 45 या अराउंड 45 में हम नहीं छोड़ते. वी कंसिडर द फैमिली हिस्ट्री, वी कंसिडर द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग एंड ऑल्सो द इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग ऑफ द ओवरीज. ये तीनों मिला के फैसला करते हैं कि ओवरीज हमने अंदर छोड़नी या नहीं. तो हर हर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शुड नॉट बी फुल ऑफ ब्लंडर्स. तो इसलिए जी फरहत. मैम फरहत ने जैसे कोई एक, क्वेश्चन? यस मैम, जैसे आपने एक जो फाइब्रॉइड था ना वो इंट्राकेविटरी था. तो मैम ये कि ये जो इसके लिए कहा जाता है ना कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जब भी कोई जैसे सबम्यूकोजल जो फाइब्रॉइड टाइप 2 है, फिगो टाइप 2, इन पे हम जो है ना यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन नहीं करते कोशिश करके, क्योंकि ये ओब्लिटरेट कर देंगे बाद में यूट्रस के अंदर बहुत ही. पेन करते हैं, लेकिन मैंने सब म्यूकोजल नहीं दिया था. मैंने इंट्रामाइमेट्रियल दिया था विच वाज इंडेंटिंग इनटू द कैविटी, यानी कि कह लो फिगो 3 एटलीस्ट. तो बट यस, अगर सब म्यूकोजल है तो उसके अंदर देखो जो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज नॉट एक्चुअली नंबर 1 पे नहीं आती है इसकी फाइब्रॉइड की मैनेजमेंट में. अभी भी हमारी गायनी की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसमें इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं.
उसमें फर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में मना हुआ है कि अगर फर्टिलिटी किसी ने आगे से करनी है तो मायोमेक्टमी इज बेटर देन यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, क्योंकि ओवेरियन रिजर्व खत्म करता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से। फिर फाइब्रॉइड और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के साथ जो पेशेंट कंसीव बाद में करती है उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा है, आईयूजीआर ज्यादा है, एक्रीटा के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो ये इस आईयूजीआर यानी प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी के वाला आईयूजीआर जो है, तो इस वजह से तो तो आप ये सारी चीजें उस तरह से फिर करते हो। और हाँ, इफ अगर सिंगल फाइब्रॉइड होता 45 होता या 40s में होता या फैमिली कंप्लीट होती तो फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन मे बी नंबर 1 पे आ जाती ऑप्शन ट्रीटमेंट की। बट अदरवाइज तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। ठीक है जी, फरहत ने एक और क्वेश्चन करना है। मैडम मैंने करना था, 2 जी क्वेश्चन फातिमा। मेरे थे। जी मैडम जी मैं प्लीज। अगर इस पेशेंट में मैं पहला इसमें हिस्टेक्टमी रखती तो वो ठीक था आंसर, कि मैंने सोचा था कि बिल्कुल ठीक था, हिस्टेक्टमी। बिल्कुल ठीक था, थोड़ा सा शायद बेहतर था। और सेकंड मैडम। वरना यूट्राइन आर्टरी भी आप नंबर 1 पे जी बोल मैम। सकते हो, और जैसे अभी बोला था आसिया ने। लेकिन यह है कि उसको फिर आप जस्टिफाई अच्छा करो। मैम, हम इस पेशेंट को मैडम तीनों थे ना मैम, फार्माकोलॉजिकल, मायोमेक्टोमी और हिस्टेक्टोमी। अगर पेशेंट यूट्रस प्रिजर्व करना चाहते हैं उसकी, फार्माकोलॉजिकल क्या है? मैम उसमें हम सारे, जैसे कि अभी पेशेंट हैवी एचएमबी के साथ है तो हम इसमें इसको ट्रांजामिक एसिड और सीओसीपीज और एक और जो फाइब्रॉइड यूनिट में है नहीं देते। मैम, फाइब्रॉइड यूनिट। में देर इज नो हार्मोनल ट्रीटमेंट, देर इज नो यस मैम। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन फाइब्रॉइड्स। मैम लेस देन 3 cm वालों को हम जो है ना यूलिप्रेस्टल एसीटेट या ये फार्माकोलॉजिकल के ऑप्शन दे सकते हैं, लेस देन 3 cm वालों यूलिप्रेस्टल एसिटेट है आपके पास अवेलेबल? को। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है मैम, नहीं है। देखो थ्योरेटिकली तो मे बी इट वाज राइट, बट अगेन अगर 3 सेंटीमीटर बियॉन्ड हो या 3 सेंटीमीटर से कम है तो वो सिंगल के लिए है ना, उसके लिए तो आप मायरीना भी रख सकते हो। लेकिन यहाँ ये तो मल्टीपल है, और अगर 3 3 सेंटीमीटर के मल्टीपल हैं जो मिलके इतना ज्यादा साइज बना रहे हैं तो भी उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। सो फाइब्रॉइड में तो फेल हो जाने वाली बात है। आप ये इमेजिन करो कि जब पेशेंट वार्ड में है या पेशेंट ओपीडी में आपके आया है तो आप क्या करते हो? You do not talk about the pharmacological management in fibroid. Frankly, you do not even talk about this thing, about uterine artery embolization much also, क्योंकि हमारी गाइडलाइंस बहुत ज्यादा इसको नहीं सपोर्ट कर रही होती। लेकिन अगेन सिंगल फाइब्रॉइड है, 40s में है एंड फैमिली कंप्लीट है, तो उसमें आप यूट्राइन आर्टरी फिर भी बता सकते हो। लेकिन ये है कि और जिस तरह आपने 1 2 3 बोला, बिल्कुल गलत बोला फरहत कि मैं इसको फार्माकोलॉजिकल माइमेक्टमी और हिस्टेक्टमी, फार्माकोलॉजिकल तो आउट हो गया। 45 के अंदर फैमिली कंप्लीट है तो माइमेक्टमी बेवकूफी है। अगर पेशेंट यूट्रस कंजर्व करने का भी कह रही है तो यू काउंसिल हर कि माइमेक्टमी ज्यादा, एक तो मॉर्बिडिटी वाला तो चलो जो प्रोसीजर होगा सो होगा, बट अगेन मेनोपॉज तक रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड का चांस रह जाएगा। ठीक है। और अगर रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड हो या फिर बाद में उसको उसको हिस्टेक्टमी करानी पड़ी हो तो हिस्टेक्टमी आफ्टर मायोमेक्टमी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी देन द वेरी फर्स्ट सर्जरी जो उसके ऊपर हो। सो इसलिए प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस नंबर 1 2 3 बोलने में ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप नंबर 1 पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिस्टेक्टमी लग रहा है तो फिर आप नंबर 1 पे हिस्टेक्टमी बोलोगे, बट देर आर फ्यू पेशेंट्स हु आर टू मच कीन टू कंजर्व देयर यूट्रस एंड तो फिर आप उसमें मायोमेक्टमी का करोगे। ठीक है। मैम अगर इस पेशेंट में हिस्टेक्टमी हमारे माइंड में आता है तो इन्वेस्टिगेशंस में चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, एलएफटी, आरएफटी उसी टाइम मांग लेना, जब माइंड में तो नहीं, मतलब से नहीं। आपने मांगने आप मांग लो, लेकिन द थिंग इज के एनेस्थीसिया रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस मांगने की या उसके खपों में पड़ने की जरूरत हमें नहीं होती है। इफ यू थिंक दैट यू नीड, अगर आपके प्रोटोकॉल है डिपार्टमेंट में या आपके रिफ्लेक्सेस बने हुए, आप मांग भी लो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरूरत नहीं है, इवन फॉर सर्जरी वो एनेस्थीसिया वाला खुद ही मांग लेंगे। ठीक है। मैडम इसी सिनेरियो को अगर हम इस तरह से करें, अगर इस पेशेंट के इनफ्रीक्वेंट प्रोलॉन्ग साइकिल्स होते, लाइक इसको जो है वो 10 to 12 डेज की ब्लीडिंग होती है और फिर आफ्टर एवरी 10 डेज ये ब्लीड कर रही होती और हैवी ब्लीड कर रही होती, तो इसको फिर हम, और इसका हीमोग्लोबिन कम होता 6 7 पे हमारे पास ये आई होती, तो फिर हम इसको जो एमेनोरिक करने के लिए दे सकते थे उस वक्त, क्योंकि इसके मतलब एमेनोरिक करते ताकि हम इसको इन द मीन टाइम प्रिपेयर करते सर्जरी के लिए, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए, तो उस वक्त हम इसको एमेनोरिक करने के लिए जीएनआरएच एनालॉग दे सकते थे।
हाँ, आप कि बिल्कुल हम ठीक कह रहे हो। इनफ्रीक्वेंट साइकिल भी बोल रहे हो और कह रहे हो एवरी 10 days ये ब्लीड करिए फॉर 10 days। सो इन मतलब अदर वर्ड्स आप इनफ्रीक्वेंट कह नहीं, रहे हो कि मतलब फ्रीक्वेंट साइकिल्स हैं। जी, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट साइकिल्स सॉरी हैं, मैडम, प्रोलॉन्ग हैवी। फ्रीक्वेंट, उसके अंदर फिर फ्रीक्वेंट प्रोलॉन्ग। जी, उसके अंदर फिर आप GnRH एनालॉग्स के बजाय फिर प्राइमलिटी कंटिन्यूस दे दो। ठीक है, ताकि तब तक आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अगर उसके कंटिन्यूस हैं, इनफ्रीक्वेंट है, तो प्रोबेबली या तो हार्मोनल भी एलिमेंट उसके ऊपर ऐड हो गया है, या फिर कोई एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम साथ ऐड हो गई है, जैसा कि मे बी सबम्यूकोजल कोई फाइब्रॉइड है या पॉलिप है या कुछ ऐसा है। GnRH एनालॉग एकदम से उसके ऊपर एक्ट भी नहीं करेगा, फिर एक्सपेंसिव भी है, फिर आप कौन सा कोई सर्जरी कई महीने आगे प्रोलॉन्ग करिए, क्योंकि GnRH एटलीस्ट 3 तो लगे ना, फिर ही कहीं जाके साइज श्रिंक होगा। तो अगर सही, कंटिन्यूस ब्लीडिंग के साथ है तो फिर कुछ तो करना है उसकी ब्लीडिंग को भी खत्म करने के लिए, तो इनको यू गिव रोकने के लिए। हर ट्रांजमीन एंड लेकिन प्राइमलेट आल्सो, बट लेकिन इवन इट्स अगर हम जस्ट टू मैडम उसको कंट्रोल द ब्लड भी ब्लीडिंग, नॉट टू लगाएंगे तो ट्रीट ब्लड से भी फाइब्रॉइड। हमको 2-3 वीक्स तो चाहिए होंगे ना ऐसे पेशेंट के लिए। तो हम किसमें, किसके साथ? मैडम, मैडम अगर वो 6-7 हीमोग्लोबिन पे है और हम उसको ब्लड से भी एनीमिया करेक्शन करें, तो उसमें भी हमें एटलीस्ट ब्लड अरेंज कराने में, ट्रांसफ्यूज करने में, रिपीट सीटीसी बिल्कुल, में देखो टू 6-7 HB वाला पेशेंट, फिर आपको बोलोगे इसी तरह कि पेशेंट जी इज इन दिस कंडीशन, कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस ऑलरेडी बिकॉज शी इज एट 6-7 HB, and I need some time to rebuild her hemoglobin to prepare for the surgery, so I have to control her continuous bleeding। और वो तो फिर एक बड़ा इमरजेंसी वाला पेशेंट भी होता है ना, जी। क्योंकि उसमें 6 या 7 पे तो पहले 2-3 ब्लड लगेंगे, 2-3 इन हैंड होंगे, फिर होगा और छह फिर सात ऐसे ब्लड पेशेंट वो जो ढूंढ होते के हैं वो, लाएंगे कहीं से। ऐसे ऐसे पेशेंट ब्रेथलेस भी होता है, वो मतलब बहुत पेल होता है, ब्रेथलेस होता है, हाँ, वीकनेस ब्रेथलेसनेस भी तो हो। अनीमिया की एक ब्लड लगा के ही ठीक हो जाती है ना, लेकिन आपने HB तो ठीक करके सर्जरी करनी है। ठीक ठीक है, है। तो अगर मैं क्विकली इसी पेशेंट की मैनेजमेंट बोलूं, तो इस पेशेंट में मैं कहूंगी कि आई वुड लाइक टू काउंसिल पेशेंट and her attendants that cause of her heavy bleeding seems to be fibroid uterus from her history examination investigations. It's a benign condition and it is a treatable condition. So, considering the whole scenario, I will discuss with my patient the possible treatment options that can be offered to her. First treatment option for her would be hysterectomy, surgical treatment, which will include hysterectomy. And as her family is complete and she doesn't want to conserve her uterus, if she wants to conserve her uterus for some social reason, then myomectomy can be offered. But second number पे my treatment option will be uterine artery embolization. उसके बाद आप then I would like to correct her anemia as I'm planning hysterectomy. I would like to do the surgery before her next period, so I will give her, अगर तो नेक्स्ट पीरियड में अभी पूरा महीना है, then I can give her pharynject or double oral iron and all, and then keeping blood arranged, I can plan surgery after 2 weeks. अगर उसका less than a week है next उसमें, तो I will give her blood transfusion at least. I will give her 2 pack cell transfusion to keep her hemoglobin above 10 for this myomectomy surgery, and will keep 2 blood in hand. Yeah, at least 3 blood in hand. Because myomectomy may it can she can bleed unexpectedly also. So ब्लड अरेंजमेंट और करेक्शन के बाद फिर आई विल प्लान हिस्टेरेक्टमी। सर्जरी सारी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वो जरा लंबा है और डिफरेंट सिनेरियोज फाइब्रॉइड से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने इसको तकरीबन इसमें अगर आपने बिफोर गोइंग अहेड विद द सर्जरी, देन यू विल से that I would like to involve multidisciplinary team, and that will include a gynecologist and anesthetist, radiologist and the hematologist, और फिर आप इसको करोगे। ठीक है, तो हमेशा बात आपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस 1 to 3 करके बोलनी है। और उसके अलावा ये है कि आप फिर एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछे कि वाई यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और नंबर 2, बिकॉज इस केस में आप नंबर 1 पे भी रख सकते हो, आसिया वाज नॉट रॉन्ग। आप उसको जस्टिफाई बड़े आराम से कर सकते हो, और उसको आप इसी तरह से कहोगे कि because her family is complete and we have got very good facility of uterine artery embolization and a very expert doctor who can do end artery embolizations in multiple fibroids also. So and it has less intervention, and she'll be safe from the major surgery. So I can offer her with that, and I can give her pharynject, and meanwhile I'll arrange the uterine artery embolization procedure for her. मैंने ठीक है। इसलिए बोला
कि मैडम मैंने इसलिए बोला था कि मेरी एक फ्रेंड आगा खान में करती है, तो आगा खान में तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हो रही है, तो मुझे पता थी ये बात कि यहाँ पे हो रही है कराची में, तो मैंने इसलिए यूट्राइन बोला। आर्टरी एम्बोलाइजेशन अब हर जगह हो रही है, लाहौर में बहुत कॉमन हो चुकी है, तो इट्स नॉट समथिंग कि हम जैसे यूनिप्रिस्टल की बात हम कर रहे थे कि इट इज नॉट अवेलेबल हेयर, वो चलो आप बाद में बात एंड पे कर सकते हो कि रीसेंट एडवांसेस की कोई एग्जामिनर बात करे या कुछ ऐसा। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज एक्चुअली अवेलेबल के बहुत मैल प्रैक्टिस हो रही है इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली, जिनमें जरूरत नहीं भी है। एंड आई हैव सीन फ्यू रेडियोलॉजिस्ट जो ओवेरियन सिस्ट में भी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं, एंड देन बिकॉज दे आर नॉट गायनेकोलॉजिस्ट, उन्हें शायद खुद भी नहीं पता कि वो गलत मैनेज कर रहे हैं, सो दे कैन आइदर हैव गायनेकोलॉजिस्ट विद देम और और साथ में वो कर रहे हैं एडिनोमायोसिस में नंबर 1 पे वो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं, तो अब तो इतना कॉमन हो चुका है कि ये मैल प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी भी है, क्योंकि गायनी की एग्जैक्ट मैनेजमेंट और हार्मोन्स या नॉन हार्मोन्स और वो सारी चीजों की उस तरह से नॉलेज नहीं होती, और वो उस तरीके से अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी फाइब्रॉइड्स के अंदर ये यूज हो सकता है, लेकिन बहुत ही पर्टिकुलर और बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनमें ये आप नंबर 1 पे ऑफर कर सकते हो, स्पेशली इन 40s। सिंगल फाइब्रॉइड फैमिली कंप्लीट तो बेस्ट कैंडिडेट है फॉर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ठीक है, सो गुड। सो नेक्स्ट टाइम हम इसकी सर्जरी के स्टेप्स और ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ फाइब्रॉइड कर लेंगे, जिसमें थोड़ा सा सब फर्टिलिटी का भी आ जाएगा, पेन भी आ जाएगा, यंग एज में फाइब्रॉइड भी आ जाएगा, थोड़ा बड़ी एज का फाइब्रॉइड भी आ जाएगा, सिंगल मल्टीपल वो हम क्विकली कर लेंगे, वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। सो वो फिर नेक्स्ट टाइम ठीक है हम इस तरीके से कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैडम।